Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Adnan Abid, co-teacher for the course Principles of Animal Life 2. The topic today we will discuss is RH blood group system. Before RH blood group system, there was another system which is known as AB blood group system. On the base of that system, we differentiate the blood into four major types: blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. After that AB blood group system, the other major blood group system is RH blood group system. On the base of this RH blood group system, we differentiate the AB blood group system further into positive or negative, means A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive, O negative. ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेस पे हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप इज ए बी ओ. ऑन द बेस ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम वी फर्दर डिफरेंशिएट द blood groups into positive and negative. How we can define the RH blood group system? The system for classifying blood groups according to presence or absence of RH antigen, often called RH factor, on the cell membranes of the red blood cells erythrocytes. means जो आर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो भी किस बेस पे फॉर्म हुआ था? ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस. स्पेसिफिक एंटीजेंस मौजूद हैं या नहीं हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इट आल्सो क्लासिफाई ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस known as RH antigens या RH factors, and these antigens, like in the AB blood group system, are present on the cell membrane of red blood cells, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. वर्क ऑफ लैंडस्टाइनर, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम पे वर्क किया सबसे पहले लैंडस्टाइनर ने. RH एंटीजन was first discovered by Landsteiner in rhesus monkey in 1930s. It is a type of monkey having brown or grey color, having pink face. सो सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया रेजिस मंकी में, और डेट्स वाई ऑन द बेस ऑफ रेजिस मंकी द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ रेजिस हम इसे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं. एंड इट डिफ्रेंशिएट द AB ब्लड ग्रुप सिस्टम फर्दर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस. अगर इसके जेनेटिक्स देखें, जीन ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, एंड देयर आर 3 डिफरेंट जीन्स एंड दे प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट लोकस. Genes C, D and E, and gene E and C share the same locus, and the gene D is present on the different locus. Mean there are 3 genes which determine the blood group, RH blood group system. The C and E gene, they are present on the same locus, and the other third gene, which is a D gene, it is present on the different locus. Out of these genes, the gene D is of prime importance. It has 2 alleles, capital D and small d, and the relationship between these alleles is complete dominance, means capital D is completely dominant over small d. अगर homozygous dominant है capital D, heterozygous dominant capital D small d, and homozygous recessive small d. तो रिलेशनशिप दोनों में क्या है? complete dominance है. अगर जीनोटाइप इंडिविजुअल की इट इज होमोसाइगस डोमिनेंट और हेट्रोसाइगस डोमिनेंट. इन केस ऑफ हेट्रोसाइगस कैपिटल डी इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी, तो RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा. इन केस ऑफ जीनोटाइप स्मॉल डी RH फैक्टर नहीं फॉर्म होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव होगा. मीन इन केस ऑफ कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, blood group will be RH positive because of the presence of RH factor. In case of small d, blood group will be RH negative because of the absence of RH factor. Anti-RH antibody is not naturally occurring. As in the case of AB blood group system, हमने देखा था कि जो इनकी antibodies होती हैं AB blood group system की, they naturally occur and they appear after the birth. बट इन केस ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं इट डजेंट अकर नेचुरली, इट रिक्वायर्स ए स्टिमुलस ऑफ एंटीजन. जब तक इन्हें एंटीजन का स्टिमुलस नहीं मिलेगा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी. एज इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप सिस्टम नेचुरली प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज़ ब्लड में, लेकिन इन केस ऑफ
RH blood group system, anti-RH antibodies are not present naturally. It requires a stimulus of antigen. After receiving that stimulus, they will produce antibodies. Next, blood transfusion. Blood transfuse जब भी करते हैं, it could be clearly transfused के एक प्रोसेस होता है एग्लूटिनेशन, मीन्स क्लम्पिंग ऑफ सेल्स. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने सही नहीं हुई तो ब्लड सेल्स क्लम्प कर जाएंगे, कैपिलरीज से नहीं गुजर सकेंगे. तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट मे बी कंपैटिबल टू ईच अदर. अगर हम देखें, इफ़ RH पॉजिटिव पर्सन इज़ गिविंग अ ब्लड टू RH नेगेटिव पर्सन, इट इज़ इनकम्पैटिबल. कंपैटिबल क्यों नहीं है, क्या रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज इन केस ऑफ RH पॉजिटिव एंटीजन्स प्रेजेंट, ठीक है, बट इन केस ऑफ RH नेगेटिव एंटीजन्स क्या है, RH एंटीजन मौजूद नहीं होती, RH फैक्टर नहीं होता. सो जब RH नेगेटिव ब्लड वाले को RH पॉजिटिव का स्टिमुलस मिलेगा, मैंने कहा था कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर रिक्वायर्स स्टिमुलस ऑफ RH एंटीजन. सो जब RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव को डोनेट कर रहे हैं, RH नेगेटिव पर्सन ब्लड रिसीव ए स्टिमुलस ऑफ RH एंटीजन. सो उस एंटीजन्स के अगेंस्ट जो RH नेगेटिव है वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. So that's why RH positive is incompatible for RH negative because of the production of the antibodies against the RH positive blood. But RH negative is compatible for RH positive. अब RH negative कैसे compatible है RH positive के लिए? Because RH negative के पास antigens नहीं होती, RH factor नहीं होता, तो जब उस RH positive को दे रहे हैं तो क्या होगा, एंटीजन्स नहीं है, उस एंटीजन्स का स्टिमुलस नहीं मिलेगा RH पॉजिटिव को, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी. तो डेट्स वाई RH नेगेटिव इज़ कंपैटिबल फॉर RH पॉजिटिव, बट RH पॉजिटिव इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर RH नेगेटिव. बट एक शर्त है, इफ़ वी आर गिविंग RH नेगेटिव टू RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव शुड नॉट बी एक्सपोज्ड एवर टू ए RH पॉजिटिव. RH नेगेटिव को उससे पहले स्टिमुलस ना मिला हुआ RH पॉजिटिव को, बिकॉज अगर पहले स्टिमुलस मिला हुआ है तो RH नेगेटिव ने क्या कर लिया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की हुई हैं. सो RH नेगेटिव शुड बी ए स्टिमुलस फ्री ऑफ RH पॉजिटिव, नेवर एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड. सो देन इट शुड बी कंपैटिबल फॉर RH पॉजिटिव. सो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन अगर देखें, स्लाइड ली है, अगर आपने 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं एंड वी यूज़ एंटीसीराज, एंटीसीरा A, एंटीसीरा B एंड एंटीसीरा D. एंटीसीरा AB फॉर डिटर्मिनिंग द ब्लड ग्रुप AB और O, उसे डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं. एंटीसीरा D इज़ यूज फॉर डिटर्मिनिंग द वेदर द ब्लड इज़ ग्रुप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. जब मिक्स किया है, कोई ड्रॉप लिया है ब्लड का, उसे एंटीसीराज के साथ मिक्स किया है, तो उसमें हम देखते हैं एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई. एंटीसीरा कंटेन एंटीबॉडीज़ A. फर्स्ट पे अगर देखें, इट कंटेन्स एंटीसीरा A, एंटीबॉडीज़ A. इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़ B, एंटीसीरा B है. इट इज़ एंड एंटी जो है D, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन्स. अब क्या है, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई. डेट मीन्स एग्लूटिनेशन कब होती है, इफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ आर सेम. These are the blood sample antisera having antibodies A, तो इसके अगेंस्ट जो ब्लड मिक्स हुआ है that contain antigen B, तो दोनों डिफरेंट है, तो डेट्स वाई क्लोटिंग नहीं हुई, तो ब्लड ग्रुप क्या है, B है. सेकंड में देखें क्लोटिंग हो गई है, एंटीसीरा B था, मतलब एंटीबॉडीज़ B हैं, तो सेम जो एंटीजन है इसके पास भी क्या होगा, B होगा. डेट्स वाई जो ब्लड क्या होगा वो क्या हो गया, क्लॉट हो गया. इन द थर्ड स्लाइड, अब वो डिटर्मिनेशन के लिए वेदर द ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, आफ्टर मिक्सिंग इट इज शोज एग्लूटिनेशन हो गई है. बिकॉज इफ़ RH पॉजिटिव ब्लड है तो जब वो एंटीबॉडीज़ RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, वो क्या करती हैं, एग्लूटिनेशन कर जाती हैं. लेकिन RH नेगेटिव के पास एंटीजन्स नहीं होती, तो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा. मीन्स इन द थर्ड एंटीसीरा D, इफ़ एग्लूटिनेशन हो जाती है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती देन ब्लड ग्रुप विल बी नेगेटिव.